Hi everyone, welcome back to my channel Gyan Gate. So this is something about me you just can read out. If you guys have any doubt, any topic related, then you can follow people on my Instagram page. I will provide you the link in the description box, or you guys can go about and check out. This is a good platform connecting with you guys to solve your problems. So don't forget to follow me on my Instagram page. If you want some notes or PDF related to my videos, so you can join me on my Telegram channel. I will provide that link in the description box. Today I want to share something with you guys. If you are also an IGNOU student and if you don't have much time to study during the exam time, then you can go towards Neeraj Books. For the past 40 years, Neeraj Publication has been tending to the field of education by developing reference book, sample paper, question bank and so more. Neeraj books provide to be beneficial as the question provided were extremely helpful for your exam because the language written in those books is also very simple and important questions are also there. And if you want to purchase these books, then you can use my coupon code GYANGATE so that you will get extra 5% discount, and this coupon code is available only on the official website of Neeraj Publication. So what are you waiting for? Go as soon as possible and purchase those books so that you can get good marks in your exam. I have written the code of all the handwritten notes here. If you want it, then you guys tell me on Telegram and Instagram. I will provide that link in the description box. You have just to pay a small amount. After that you will get these handwritten notes, and these handwritten notes are very important for the point of your exam. and इन handwritten notes में वही क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जो handwritten notes है बहुत ही ईजी एंड सिंपल लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है. सो परचेज दीज handwritten notes so that you can get good marks in your exams. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग के टाइप्स, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, उनके भी टाइप्स बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे. अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी. आप लोग जाके पहले वो वाला वीडियो देखिए, तभी आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. So देखिए, it is a probability distribution of a statistic obtained from a large number of sample drawn from a specific population. मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है कि जब भी कोई भी स्पेसिफिक पॉपुलेशन है और उनके जब हम काफ़ी सारे सैम्पल्स ड्रॉन करते हैं और उन सैम्पल का स्टैटिस्टिक फाइंड आउट करते हैं. मतलब कि देखो, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि एक बहुत सारी पॉपुलेशन होती है, तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना उतना पॉसिबल नहीं होता. जब हम उस पॉपुलेशन में पूरी की पूरी पॉपुलेशन में से थोड़ा सा सैम्पल साइड में ले लेते हैं और उसके ऊपर जब हम स्टैटिस्टिक टूल्स का अप्लाई करते हैं या फिर हम उन सैम्पल्स के ऊपर स्टडी करते हैं, तो इसमें वही बोला है कि जो सैम्पलिंग होता है, सैम्पलिंग एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. और जब हम इस पे जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से जब हम सैम्पल्स लेते हैं, बहुत सारे सैम्पल्स होते हैं, और जब हम उनके ऊपर स्टैटिस्टिक्स टूल्स जो होते हैं वो अप्लाई करते हैं. स्टैटिस्टिक्स टूल्स मतलब एनी काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक कैलकुलेशन, इट कैन बी मीन, इट कैन बी मीडियन और इट कैन बी स्टैंडर्ड डेविएशन. जब हम ये सारे के सारे टूल्स अप्लाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है. एक बार और बताती हूँ. जब हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन में से सैंपल लेते हैं थोड़ा सा, और उन सैंपल के ऊपर जब हम स्टैटिस्टिक टूल्स अप्लाई करते हैं, फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं, इट कैन बी मीन, इट कैन बी मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, जब हम इनको अप्लाई करते हैं, इनको अप्लाई करने को ही हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. सो देखिए, और जब हम इन स्टैटिस्टिक को हम सैंपल पर अप्लाई करते हैं और जब हम इनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब बनाते हैं तो इनको बोलते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया. अभी एक एग्जाम्पल है, उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा. तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ बॉल्स दी है. बॉल्स का पॉपुलेशन दिया है जैसे कि 1 2 3, इनका हमें निकालना सैंपल, और सैंपल का साइज दिया है यहाँ पे n 2, मतलब 2 साइज दिया है यहाँ पे.
तो अभी हम इनका सैंपल निकालना है। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि इसके कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो इसमें से 1 और 2 बोला है, तो सैंपल साइज इसका n दिया है, n मतलब 2 दिया है, तो हमको 2 बार में निकालना है कि कितने आ सकते हैं। एक बार में करेंगे तो 1 and 2 आ सकते हैं, सेकंड बार करेंगे तो 2 and 3 आ सकते हैं। एंड अगर हमें करना है कैसे, इनको हमें रैंडमली करना है एंड नंबर ऑफ पॉसिबल विद रिप्लेसमेंट के थ्रू करना है। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि देखो, अगर मैंने फर्स्ट बार किया 1 और 2 आया, सेकंड बार 2 and 3 आया, तो 1 जो है ऐसा नहीं है कि एक बार आ गया तो उसके बाद वो नहीं आ सकता। 1 कितनी भी बार आ सकता है, जो 3 है 2 है, ये कितनी भी बार आ सकते हैं। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल विद रिप्लेसमेंट। अभी देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में एक टेबल दिया है, टेबल के थ्रू हम इसको समझते हैं। पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2, कितना साइज दिया हमें, n कितना दिया है 2, एंड सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हमने कैसे किया है, रिप्लेसमेंट किया है। जैसे कि 1 मैंने आपको बताया कि 1 आया है तो वो सेकंड टाइम भी आ सकता है, 2 आया है तो वो सेकंड टाइम भी आ सकता है। अब देखिए पॉसिबल, एक यहाँ पे जो टेबल दी है इसको आप समझने की कोशिश करना। जैसे पॉसिबल पिक विद रिप्लेसमेंट हमने किया, जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो 1 by 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 2 by 1 आ सकता है। ठीक है, ऐसे सारे करके देखेंगे तो हमारे ये आ जाएंगे पॉसिबल पिक विद रिप्लेसमेंट। देन उसके बाद हम इनका सैंपल साइज निकालेंगे। इसमें हम सैंपल साइज मीन से निकालेंगे, आप चाहो तो मोड, मीडियन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम इसमें मीन से करेंगे सैंपल साइज। तो देखिए सबसे पहले मीन का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है इसमें, 1 और 1 है, तो 1 + 1 2 और डिवाइड बाय 2। अगर हम 2 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो सैंपल साइज कितना है, फर्स्ट का 1, सेकंड का 1 + 2 = 3, 3 डिवाइड बाय 2। 2 क्यों किया, क्योंकि सैंपल साइज कितना था इसमें 2, तो 3 by 2 करेंगे तो 1.5। थर्ड में देखो 1 और 3 है, तो 1 + 3 करेंगे 4 और डिवाइड बाय 2 कट करेंगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे में हम सारों का सैंपल साइज निकाल लेंगे। ये जो एवरेज लिखा है मैंने, इसको अभी नहीं, नेक्स्ट में आके आपको पढ़ाऊंगी, आपको बस टेबल में अभी इतना ही देखना है, एवरेज में आपको जब बताऊंगी तब आपको देखना है। तो ऐसे करके हम पूरा सैंपल साइज निकालेंगे। उसके बाद जो हमने सैंपल साइज निकाला है उसका भी हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। तो देखिए अभी हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है सम ऑफ पॉसिबल आउटकम्स टोटल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अभी हम किसका निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, हम 2 का निकालेंगे कि 2 के आने के कितने चांसेस हैं और 2 कितनी बार है। अभी देखिए हम यहाँ पे देखेंगे कि 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो 3 बार आया है 2। सम ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 2 आने के कितने चांसेस है, 3 बार यह आया, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 9। ठीक है, 9 आउटकम्स है ये, तो 3 डिवाइड बाय 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की, ऊपर थोड़ा सा मीनिंग बताया, नीचे इस एग्जाम्पल के थ्रू बताया। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखिए, फिर जब हम इनको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे ना, एंड वी विल गेट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और उनको हम कहेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो भी जितने भी हमारे सैंपल साइज आए थे, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आया था, उसको हम जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तब जाके वो लास्ट में कहलाया जाता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे पहले लिखेंगे सैंपल मीन। तो सैंपल मीन हमारे क्या क्या आए थे, 1 आया था, 1.5 आया था, 2 आया था और 2.5 और 3 आया था। फिर हमने निकाला था प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हमने देखा अब 1 जो 1 आया वो कितनी बार आया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम थे 9। तो अब हम देखेंगे 1 जो है वो कितनी बार आया है, तो 1 एक ही बार आया है, तो 1/9 पे हम डॉट कर देंगे। फिर हम देखेंगे कि 1.5 जो था वो कितनी बार आया, तो 1.5 2 बार आया। ठीक है, 2/9। उसके बाद हम देखेंगे 2 कितनी बार है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया था, तो 2 जो है वो 3 बार आया, तो क्या हो जाएगा 3/9। उसके बाद है कि 2.5 कितनी बार आया, ये आया 2/9। उसके बाद 3 कितनी बार आया, ये एक बार आया, तो 1/9। फिर जितनी भी डॉट्स हमने की थी सारी डॉट्स को हम मिला देंगे, उसके बाद ये बन जाएगा हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो अभी हम इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं। देखिए, इन केस ऑफ मीन वैल्यू व्हेन वी टेक आउट द पॉसिबल सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन एंड प्लॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मीन वैल्यू ऑफ द सैंपल ऑन अ ग्राफ, वी विल गेट अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। इस सेकंड पॉइंट में वही बोला जो मैंने आप लोगों को अभी तक पढ़ाया है। और एग्जाम्पल मैंने बताया कि जब हम मीन वैल्यूज को निकालते हैं, जितने भी हमारे पॉसिबल आउटकम्स थे, पॉसिबल सैंपल्स थे हमारे, जब हम उनका सैंपल निकालते, पहले हमने सैंपल निकाला, फिर हमने प्रोबेबिलिटी निकाला। ठीक है, फिर हमने क्या किया, उनको सैंपल को और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हमने जब ग्राफ पे प्लॉट किया, तब हमारे पास क्या आया, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने किसके बिहाफ पे निकाला, सैंपल मीन। ठीक है,
तो ये पॉइंट है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, इन अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, हमने विद रिप्लेसमेंट किया था कि जैसे विद रिप्लेसमेंट का नंबर मैंने आपको बताया था कि 1 है तो वो सेकंड टाइम भी आ सकता है, 2 है तो वो सेकंड टाइम भी आ सकता है। इसका मीनिंग होता है विद रिप्लेसमेंट। द मीन ऑफ ऑल द सैंपल मीन इक्वल द पॉपुलेशन मीन। अभी ये वाला पॉइंट आप देखना कि मीन ऑफ ऑल द सैंपल मीन इक्वल द पॉपुलेशन मीन। अभी जो टेबल मैंने बताया था उससे यहाँ पे देखिए, ये जो है सैंपल साइज, अगर हम इनका भी एवरेज निकाले तो ये हमारे पॉपुलेशन ऑफ बॉयज जो है इनके इक्वल आएगा। अभी देखिए सैंपल साइज जो है हमारा, अभी हम इनका पूरा का टोटल करेंगे, 1 + 1.5 + 2 + 1.5 + 2 + 2.5 + 2 + 2.5 + 3, अगर हम सारों का टोटल करेंगे तो आएगा 18 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 9। तो 18 / 9 क्या आ गया हमारा 2। और यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन ऑफ बॉल जो है सैंपल है आपका, सैंपल मीन, तो इसमें ये कितना है 1 2 3। तो अगर हम 1 + 2 + 3 करेंगे डिवाइड बाई कितने करेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स करेंगे 3, तो ये कितना आ जाएगा 6 / 3। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सैंपल मीन जो है हमारा ये भी 2 आया है और एवरेज जो है हमारा ये भी 2 आया है। ठीक है, अभी हम बैक चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, द मीन ऑफ ऑल द सैंपल मीन इक्वल द पॉपुलेशन, मतलब कि जो ऑल द सैंपल मीन होता है वो इक्वल होता है पॉपुलेशन मीन के। एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैंपल मीन इज इक्वल टू द पॉपुलेशन। जैसे कि ये 2 फॉर्मूला लिखा है, इसमें क्या बोला कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ये इक्वल होता है सैंपल पॉपुलेशन के। ठीक है, होता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंफीरियर स्टैटिस्टिक। इसका मीनिंग होता है कि जब भी हम पूरी पॉपुलेशन में से बहुत सारे सैंपल इकट्ठा कर लेते हैं और उन सैंपल्स के ऊपर जब हम स्टैटिस्टिक टूल्स अप्लाई करते हैं जैसे कि मीन, मीडियन, तो उसको हम बोलते हैं इंफीरियर स्टैटिस्टिक्स। देन उसके बाद है फिफ्थ, द शेप ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट नेसेसरी लाइक द बेल शेप, बट as the sample size increase the graph tends forming a normal distribution curve. This is called a central limit theorem. देखो जैसे कि मैंने बताया है कि जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे ना हमारा बोला मैंने, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे ग्राफ जो बना है इसको आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है हमारा ये बेल शेप का होता है। अगर आपको नहीं पता नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है तो इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लेना, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनाते हैं तो बेल शेप का बनता है। तो इसमें बोला है कि जब हम सैंपल साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं तभी भी हमारा सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। अब यहाँ पे देखो हमारा जो ग्राफ आया था ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह नहीं है, लेकिन हम इनके सैंपल साइज को थोड़ा सा बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे, तो ये भी जो हमारा कर्व बनेगा कैसा बनेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा ये कर्व बनेगा। इस पॉइंट्स में यही बोला है कि द शेप ऑफ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट नेसेसरी लाइक द बेल शेप। जरूरी नहीं है कि बेल शेप का बने, लेकिन अगर हम इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते तो ये थोड़ा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा बन जाएगा। और इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियोस के साथ बने रहना। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Lastly, if you like my videos, don't forget to share and subscribe to my channel and hit the bell icon for upcoming videos. और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो ज्ञान होता है वो बांटने से बढ़ता है। अगर आप लोग बांटोगे ना तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा ही। सो लाइक करना, शेयर करना एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। Until next time, stay curious and keep learning. Thanks for watching.